brilliant minds, how are you all? This is Sarshi, your science teacher. Today we are starting with chapter number 8, body movement. Look at the animals shown in the picture differ greatly in the way they look. एनिमल्स जो हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, सारे एनिमल्स देखने में डिफरेंट होते हैं. इनफैक्ट उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, सब मूवमेंट सब अलग अलग होता है. बट दे ऑल नीड फूड, कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस. सबको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है? फूड. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड food. Living things like plants also need food, animals need food, and we need food. They all move from one place to another in search of food and shelter. So why we need movement? Movement की ज़रूरत ही क्या है? Why we are understanding this chapter here, right? So we need a movement to find the shelter, to find the food, right? This movement of the entire body of animal from one place to another, this is called locomotion. So children, motion and locomotion दो चीज़ें होती हैं. Locomotion is something we are changing our place. Let's say I am standing here, I am moving completely, I have moved to different place. So this is called locomotion. I am standing here, I am moving my hand, my fingers, like my eyes. So this is not locomotion, this is simple motion, right? So there is a difference between motion and locomotion. Locomotion होता है जब हम अपना place change कर देते हैं, and when we are standing or sitting at one place and we are moving our hands, our fingers, our eyes, we are doing something with our hands, right? So this is called motion only. So I think you all are clear with motion and locomotion. Very nice. Now move to the next, which is you are also able to move from one place to another. Moreover, you can do this various ways like walking, running. हम walk करते हैं, run करते हैं, hopping, skipping, etc. Even when you are sitting in one place, you can move your hands, your arms, your legs, turn your head और blink your eyes. एक जगह बैठे बैठे भी हम अपने hands move करते हैं, fingers, अपनी eyes blink करते हैं, head move करते हैं, arms move करते हैं. In fact, we are sitting at one place, we are moving our legs also. तो क्या होता है? This is called only motion. So are these movements different from moving the entire body from one place to another? एक जगह से दूसरी जगह. तो ये सेम चीज़ की मोशन एंड लोकोमोशन में क्या फ़र्क है? मूवमेंट एक जगह बैठकर जो हम अपने हैंड्स मूव करते हैं, हेड मूव करते हैं, लेग्स मूव करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मोशन. और अगर हम एक प्लेस चेंज करते हैं, वी आर शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, राइट? सो यही डिफरेंस है. Now we have a table. Try to move the various part of your body and record the movement in this टेबल. जो अब ये एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको बॉडी पार्ट्स दिए हैं एक कॉलम में, लाइक नेक, राइट? अब एग्जाम्पल है नेक. नेक क्या हम कंप्लीटली रोटेट कर पाते हैं? कंप्लीटली रोटेट नहीं कर पाते हैं. हम साइडवेज करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा पूरा गोल घूम जाए, राइट? सो इट इज़ नॉट that we are rotating completely. So we will cross here or you can write down no here, right? Rotates partially or turns. Yes, हम partly turn करते हैं, up down, right, left, right, हम partly turn करते हैं. Bend कर सकते हैं, yes, bend कर सकते हैं ऐसे. And लिफ्ट कर सकते हैं. अपनी नेक को क्या हम उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं? नो, हम लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. डज नॉट मूव एट ऑल, अगेन नो, राइट? सो हम मूव तो कर रहे हैं, चाहे पार्शियली मूव कर रहे हैं, चाहे कंप्लीटली मूव कर रहे हैं, राइट? सो बेंड यस, लिफ्ट नो. तो दिस इज हाउ यू नीड टू फिल दिस टेबल, राइट? सो ये मूवमेंट है कि कैसे किस बॉडी पार्ट में हमारा मूवमेंट होता है, राइट? सो आई हैव फिल्ड दिस टेबल फॉर यू, सो यू कैन नोट डाउन
these things that I have filled here. जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है, there you can write down no, and where I have kept this right mark, तो वहाँ पर आप yes लिखोगे, right? So इस तरीके से मूवमेंट होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. नाउ elbow and arms are left. So children, this is how we have completed this table. Next, all the bones in our body also form a framework. Framework क्या होता है children? एक फ्रेम बनाता है ताकि हमारी बॉडी को एक शेप मिल पाए, राइट? और ये शेप कैसे मिलती है? बिकॉज ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है? हम स्केलेटन पढ़ेंगे. हमारी बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक फ्रेम बनाती हैं. उस फ्रेम के अंदर फिर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, वो सब होता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली. सो स्केलेटन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटल. राइट नाउ स्केलेटन एंड इट्स फंक्शन. स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले इट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. जैसे रिब केज है, रिब केज हमारे लिवर को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. हमारा स्कल जो होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो इस तरीके से. और जो हमारे पीछे बैकबोन होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, तो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को एक शेप देता है. इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स अस आवर डिस्टिंक्टिव शेप. विदाउट आवर स्केलेटन वी वुड लुक मोर लाइक अ स्लग, राइट? अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल नहीं होगा या हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे और वो प्रॉपर एक शेप में नहीं होंगे तो हम कैसा दिखेंगे? एक स्लग की तरह दिखेंगे, राइट? इट अलाउज अस टू मूव इन पर्टिकुलर वेज, मूवमेंट बिकॉज ऑफ द स्केलेटल, एंड इट मेक्स न्यू ब्लड सेल्स टू मेंटेन अ हेल्दी ब्लड स्ट्रीम. और ब्लड बनता है. ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है. जो बोन के अंदर बोन मैरो होती है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और न्यूट्रिएंट्स एक साइड हर बॉडी पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको लेकर जाता है, राइट? सो विद सो मेनी इंपॉर्टेंट जॉब्स टू डू, द स्केलेटल इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. Children, next topic is putting the pieces together. When humans are born, they have around 350 bones. जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी बोन्स होती है? 350. और जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे करके बोन्स क्लब हो जाती हैं और कितनी बोन्स बन जाती हैं? 206 bones. The bones of the skeleton can be placed into two groups. The first group is called axial skeleton, which is the bone that form our center. So पहला मतलब टोटल स्केलेटल सिस्टम को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है एक्साइल स्केलेटन. एक्साइल स्केलेटन में जो हमारा सेंटर का पार्ट बनता है, राइट? हमारी बैकबोन है, हमारा स्केल है और रिब केज है, राइट? द बोन्स ऑफ द एक्साइल स्केलेटन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, इंक्लूडिंग द स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रे, राइट? तो ये हमारा एक्साइल स्केलेटन होता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, दिस इज कॉल्ड appendicular skeleton. So it is made up of all the bones that of our arms and legs, right? Appendages. Appendicular skeletal system बोलते हैं जिसमें हमारे arms and legs की bones आती हैं. And you would be amazed to know total 206 bones में से approximately 100 bones से ज़्यादा bones हमारे hands and toes में होती हैं. Yes. So the bones of arms, hands, legs, feet, shoulder and hip, इसको सिस्टम को बोलते हैं हम appendicular skeletal system. So now we'll come to know the parts of human skeleton. सबसे पहले हम पढ़ेंगे skull. Skull यानी first part of human skeletal which is axial skeleton. So axial skeleton में skull आता है और इसके अंदर कितनी bones होती हैं? 29 बोन्स होती हैं. इसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, क्रेनियम, फेशियल स्केलेटन एंड जॉ बोन्स. जॉ बोन्स, skull and facial skeleton. So the cranium consists of
8 different bones. These bones are flat and are interlocked with each other. तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. 8 बोन्स होती हैं, 8 बोन्स आपस में इंटरलॉक लाइक दिस. आई एम इंटरलॉकिंग माई फिंगर्स. सो ये बिल्कुल फंस जाती है, सो इंटरलॉक हो जाती हैं. 8 बोन्स जो हमारे स्कल में है, दीज आर इंटरलॉक्ड. और ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. सो दीज बोन्स डिटरमाइन द साइज ऑफ हेड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन विच इज मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम एनी फिजिकल शॉक और इंजरी. सो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब ट्रैवल करते हैं, अगर हेलमेट्स के लिए इसीलिए बोला जाता है टू वेयर द हेलमेट सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर स्कल, राइट. अदरवाइज हेड इंजरीज बहुत डेंजरस होती हैं और ब्रेन हमारा बहुत डेलिकेट पार्ट है. इसके अलावा टोटल हमने बोन्स पढ़े 29 में से 8 बोन्स हमारे स्कल में हैं. इसके अलावा 14 बोन्स हमारे फेशियल स्केलेटल में आते हैं. सो रफ मार्जिन्स आर क्लोजली इंटरलॉक्ड विद ईच अदर टू गिव स्पेसिफिक शेप टू द फेस. हमारी फेस का जो शेप है वो इन बोन्स की इंटरलॉकिंग की वजह से होता है. दीज फेशियल बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आईज. अब हमारे आईज को भी प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा इट गिव्स सपोर्ट टू द नोज एंड आईज एंड रेंडर्स देम स्पेसिफिक शेप्स. हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है हमारे फेशियल जो स्केलेटल है. इसके अलावा 2 जॉ बोन्स होती हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. जो अपर जॉ हमारा फिक्स्ड होता है, लोअर जॉ हमारा मूवेबल होता है और इसी की वजह से हम फूड च्यू कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू टॉक बिकॉज ऑफ द लोअर जॉ. अपर जॉ कैसा है? इमोबाइल है. Now next to the next part of axial skeleton which is vertebral column or we call it बैकबोन. और ये किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और बैकबोन. द बैकबोन इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ आवर बॉडी. विदाउट इट वी कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट और बेंड. अगर बैकबोन नहीं होती तो हम सीधे खड़े रह पाते? क्या हम झुक पाते? सो वी आर नॉट एबल टू बेंड and stand erect, and this is possible because of the backbone only. It forms the main axis of skeleton and it is made up with 33 small bones called vertebrae. इसके अंदर कितनी bones हैं? 33 bones हैं और ये vertebrae form करती है. Vertebrae from a hollow ring which protects our spinal कॉर्ड. किसको प्रोटेक्शन मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड को. दे आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट दे इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू अस टू बेंड और मूव. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट शॉक और इंजरी. जैसे ब्रेन बहुत डेलिकेट है, सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत डेलिकेट है जिसको हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है. द वर्टिब्रे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स based on the variation in their structure. The last 4 vertebrae are fused to form a single bone called coccyx. राइट. सो लास्ट की जो 4 बोन्स हैं वर्टिब्रे में, वर्टिब्रल कॉलम में, वो फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन बनाती है जिसका नाम है कॉक्सिक्स. इन अदर एनिमल्स दे आर नॉट फ्यूज बट फॉर्म द टेल बोन्स. बाकी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है और टेल बोन बनती है. नाउ नेक्स्ट इज रिब केज. रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लिवर को. बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स, जिसमें अपर पेयर जो होता है वो हमारा कॉलर बोन, कॉलर जो बोन है उसको फॉर्म करता है और नीचे जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है. और रिब केज कैसे फॉर्म होता है? बैक साइड से तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं और आगे स्टर्नम बोन होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उससे अटैच हो. एंड इस केज के अंदर हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. सो go through this para. It forms the upper front part of our body which you normally call chest. हमारी chest basically rib cage से मिलकर बनती है. It consists of 12 pairs of ribs. The ribs are attached to the vertebral column at the back and in front they are attached to the central flat breast bone जिसको हम sternum कहते हैं. बैक से ये
किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से, और फ्रंट से ये स्टर्नम से अटैच है. द लास्ट टू रिब्स आर अटैच्ड ओनली एट द बैक and are not to the sternum in the front, therefore they are called the floating ribs. इनको floating ribs कहते हैं. और जो ऊपर की ribs होती हैं उनको क्या बोलते हैं? collar bones. Now next is limbs. दो types के limbs होते हैं, fore limbs and hind limbs. हमारे arms and हमारे legs. So it includes the bones of limbs and joints. So there are a pair of limbs in our body. There are four limbs. These are four limbs यानी arms and hind limbs यानी कि legs. Human beings are the only bipedal animals. Bipedal यानी कि अपने पैरों पर चलता है. The walk with their hind limbs while the forelimbs are modified to perform other activities. So human beings ही एक ऐसा animal है, ह्यूमन्स को भी एनिमल्स ही कंसीडर किया जाता है साइंस में. सो ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली एनिमल जो कि अपने हिंड लिम्स पर चलते हैं, और हमारे फोर लिम्स जो हैं हमने मतलब वो मॉडिफाई हो गए हैं, और मॉडिफाई होके क्या करते हैं? मॉडिफाई होकर हम अपने हैंड्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. द अपर आर्म्स हैज़ ओनली वन बोन while the lower arm has two bones which are further attached to the wrist, palm and fingers. अपर आर्म यानी कि शोल्डर से लेकर एल्बो तक का जो एरिया होता है इसमें सिंगल बोन होती है, और एल्बो से नीचे रिस्ट तक इस यहाँ पर टू बोन्स होती हैं, एंड दे विच फर्दर अटैच टू द रिस्ट. और ये बोन हमारी कहाँ अटैच हो जाती है? रिस्ट पर अटैच हो जाती है, पाम एंड फिंगर्स. और फिर उसके बाद यहाँ पाम एंड देन fingers. The palm consists of 5 bones. Each finger consists of 3 small bones joined to each other, जिनको phalanges बोलते हैं. तो आगे जो हमारी fingers हैं उनके अंदर 3 joints होते हैं. Now this is the picture of hind limbs and forelimbs. Hind limbs or legs also have the same pattern of bones as an arm. So इसमें भी ऊपर हिप जॉइंट से लेकर नीचे पैरों तक ये हमारे हिंड लिम्स यानी लेग्स होते हैं. ऊपर जो थाई बोन होती है उसमें एक बोन होती है. नी से नीचे यानी एंकल तक यहाँ पर 2 बोन्स होते हैं, और फिर फर्दर रिस्ट की जगह एंकल आ गया, एंकल से आगे फिर हमारा फुट होता है, एंड देन टोज होते हैं. राइट. सो हिंड लिम्स और लेग्स ऑल्सो हैव द सेम पैटर्न ऑफ बोन्स एज एन आर्म. द अपर leg consists of a single bone called thigh bone, and the lower legs consists of 2 bones. These are further attached to the ankle and toes. Now bones are alive. Bones कैसी हैं? अलाइव हैं, डेड नहीं है. जो हम स्केलेटन देखते हैं कहाँ पर? म्यूजियम्स में या लैब्स में जो हम स्केलेटन देखते हैं वो डेड बोन्स का होता है, किसी डेड पर्सन का होता है, या आजकल तो प्लास्टिक से बने हुए भी आते हैं. द बोन्स डिस्प्ले इन एनी म्यूजियम आर ड्राई, हार्ड एंड डेड. द बोन्स इनसाइड अ लिविंग बॉडी आर डिफरेंट. इन अ चाइल्ड जब हम कितने होती है? 350 बोन्स होते हैं, और फिर बाद में 206 रह जाती हैं. तो इसमें बोन्स में भी कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं बोन्स में. द आउटर लेयर ऑफ अ लिविंग बोन्स कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट नरिश द बोन. सबसे बाहर की तरफ जो बोन की लेयर होती है पेरियोस्टोम, इसमें क्या होती है? इसके अंदर बोन के अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये बोन्स को नरिश करती है. So there are small holes that act as a portals for blood vessels to carry blood to and from the bones. और बोन मैरो अंदर फिल्ड होता है, बोन मैरो में ब्लड बनता है, तो ब्लड यहाँ तक लाती भी हैं, और यहाँ से जो ब्लड बनता है रेड ब्लड सेल्स उनको आगे लेकर भी जाती हैं. राइट. सो द नेक्स्ट लेयर दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. ये है कॉम्पैक्ट बोन, ये वाली लेयर. दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. ये स्मूथ है. हार्ड पार्ट यू सी व्हेन यू लुक एट द डेड स्केलेटन और बोन. सो जो डेड स्केलेटन जिसकी हम बात कर रहे थे जो म्यूजियम में मिलता है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो कैसा होती है? वो हार्ड पार्ट होता है और स्मूथ पार्ट
होता है हमारे बोन्स का, तो यही पार्ट विजिबल होता है, कौन सा, कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट। नेक्स्ट इज इनसाइड द कॉम्पैक्ट बोन, दिस इट इज अ स्पॉन्जी बोन, थ्रू दिस इज सॉफ्ट एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आया, स्पॉन्जी बोन का पार्ट आया, ये वाला पार्ट, और ये सॉफ्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इन मैनी बोन्स द मिडल पार्ट होल्ड्स बोन मैरो, बोन मैरो मेक्स न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी, नॉट ऑल बोन्स कंटेन मैरो, हर बोन में बोन मैरो नहीं होता है, तो कुछ ही बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और वो बोन मैरो में क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, वो बनती है। सो नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, योर अप्रॉक्सीमेट हाइट कैन बी मेजर्ड from fingertip to fingertip when your arms are stretched out wide। इस तरह से जब आप अपने हाथ खोलते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी फिंगर टिप टू फिंगर टिप हम मेजर करते हैं। सो बेसिकली हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। यूज अ टेप टू मेजर एंड हैव समवन टू मेजर योर हाइट फ्रॉम फिंगर टिप टू फिंगर टिप एंड देन फ्रॉम हेड टू टो। सो वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। फिंगर टिप से फिंगर टिप अगर आप चेक करते हो, बहुत अच्छे से हैंड्स को स्प्रेड करते हो, तो अगर आप मेजर करोगे वो और आपका हेड टू टो हाइट ऑलमोस्ट सेम होगा। सो अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हो माई आर्म स्पेन लेंथ कितनी है और माई हेड टू टो कितना है। अगर डिफरेंस है तो यू कैन राइट डाउन डिफरेंस हेयर। नाउ द बिगेस्ट बोन इन द स्केलेटन इज फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। थाई में भी एक बोन होती है और अपर आर्म में भी एक बोन होती है। तो हमारी बॉडी में बिगेस्ट बोन या जो बड़ी बोन होती है उसको बोलते हैं थाई बोन, जिसका नाम है फीमर, विच मेजर्स अबाउट 1/4 ऑफ अ पर्सन्स हाइट। एक पर्सन की हाइट का 1/4 पार्ट होता है, इतनी लंबी होती है। यानी अगर हमारी टोटल हाइट 4 फीट है तो उसमें से 1 फीट की कितनी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। सो हाउ लॉन्ग इज योर फीमर, सो लेंथ ऑफ माई फीमर वो आप यहाँ लिखेंगे माई हाइट डिवाइडेड बाय 4। जो अब जैसे 4 फीट हमने किया, 4 फीट डिवाइडेड बाय 4 यानी 1 जो आंसर आएगा दैट इज द लेंथ ऑफ योर फीमर। डिफरेंस इफ एनी, तो ये अगर कोई डिफरेंस है, वैसे तो यही फॉर्मूला है, डिफरेंस नहीं होगा, ये सेम होगी, बट अगर है सो यू कैन मेंशन हियर। नेक्स्ट इज अबाउट हाफ ऑफ योर बोन्स आर इन योर हैंड्स एंड फीट। इफ यू हैव 206 बोन्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर इन योर हैंड्स एंड फीट। सो एक हाथ में हमारे एक हाथ में 27 बोन्स होते हैं। सो 2 हाथ हो गए तो 54 बोन्स हो गए। हमारे फीट में एक फुट में कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। सो अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 सो हो जाएंगे 52 बोन्स। सो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा बोन्स हमारे हाथों और पैरों में ही होती हैं। योर स्केलेटन मेक्स अप अबाउट 1/5 of your total body weight approximately how much does your skeleton weight। जो हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है अगर आप उसको डिवाइड करोगे 5 से तो उसका 1 पार्ट हमारा बोन्स का होता है। तो आप अपना टोटल वेट लिख सकते हो और डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हो। सो दिस विल कम योर skeletal weight, right children? नाउ केयर ऑफ योर बोन्स, हमें अपनी बोन्स को केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी शुड मेक श्योर टू गेट प्लेंटी ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट, क्योंकि बोन्स किससे बनते हैं, कैल्शियम से, फॉस्फोरस से। सो कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटालिक मिनरल, और विटामिन एंड मिनरल्स जब हमने फूड के बारे में चैप्टर पढ़ा था, सो कैल्शियम कम्स अंडर मिनरल। कैल्शियम एक मिनरल है, राइट? और हमारी बोन्स जो हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं। एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी 99% ऑफ इट इज स्टोर्ड इन द बोन्स। तो कितना 99% कैल्शियम जो होता है वो हमारी बोन्स में ही स्टोर होता है। अलॉन्ग विद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स आवर हार्ट, मसल्स एंड नर्व्स
फंक्शन, तो कैल्शियम इज अ मिनरल जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा हमारे हार्ट के फंक्शंस के लिए, मसल्स के फंक्शंस के लिए और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस विच प्रिवेंट्स योर बोन्स फ्रॉम लूजिंग कैल्शियम एंड ग्रोइंग वीक एंड ब्रिटल एज यू गेट ओल्डर. तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है कैल्शियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और बोन्स जो हैं वो वीक होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं. सो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योगा करने से क्या होता है, योगा करने से हमारे बोन्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, हमारे बोन्स स्ट्रेंथन होते हैं. 21 जून हमारा इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ है. इंटरनेशनल योगा डे कीप्स अ पर्सन हेल्दी, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट. जैसे जैसे एज चिल्ड्रन बढ़ती है तो क्या होता है हमारी बैकबोन बेंड होने लगती है. आपने देखा होगा जब ओल्ड जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो अब ओल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे, वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि हमारी बैकबोन इरेक्ट नहीं रह पाती है, सीधी खड़ी नहीं रह पाती है. क्या होता है हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं, बेंड होने लगते हैं. सो योगा हमारी बैकबोन को इरेक्ट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लच. और हम क्या करते हैं, हम जनरली जब बैठते हैं तो हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं, राइट. तो क्या होता है कि अगर हम रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बैकबोन जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है, इरेक्ट रहती है, तो हमारे पोस्चर्स भी इम्प्रूव होते हैं. एंड चिल्ड्रन, अगर हमारे पोस्चर्स इम्प्रूव्ड हैं, हमारे पोस्चर्स करेक्ट हैं, तो हमें बोन्स में पेन भी नहीं होगा. अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे हम झुकना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे पोस्चर्स गड़बड़ाने लगते हैं, तो हमारे को पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में. सो मेनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर्ड यू टू लिफ्ट योर वेट विच हेल्प्स इन मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की बीमारी होती है जिसमें जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, कैल्शियम फॉर्मेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे करके फ्रैक्चर होने स्टार्ट हो जाते हैं. अपने आप फ्रैक्चर स्टार्ट होते हैं. थोड़ा सा भी आपको एक जर्क लगा और आप बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, या ज़रा सा गिरे, स्लिप हुए, तो जब एज बड़ी होने लगती है तो धीरे धीरे बोन्स में स्ट्रेंथनिंग कम होने लगती है, कैल्शियम फॉर्मेशन हमारी बोन्स में ख़त्म हो जाता है. स्पेशली फीमेल्स में 35 के बाद वो कैल्शियम फॉर्मेशन जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है और बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कैन फ्रैक्चर और ब्रेक विद इनफ प्रेशर और स्ट्रेन, बट बिकॉज द बोन्स इन आवर बॉडी आर अलाइव दे विल हील ओवर अ टाइम. तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, जो बोन्स है हमारी बॉडी में वो कैसी हैं, दे आर अलाइव, राइट. तो अपने आप वो हील हो जाती हैं. उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग डाइट लेना ज़रूरी है. सो even though the bone can fix itself, it is important to go to the doctor right away to help the bone heal. The doctor will take an x-ray to see how and where the bone is broken. क्या होता है अगर बोन कहीं फ्रैक्चर है, कुछ प्रॉब्लम है, जो although बोन्स अपने आप को खुद हील करती है, बट हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है क्योंकि डॉक्टर एक्सरे लेता है और एक्सरे से हमें पता चलता है, डॉक्टर को पता चलता है कि कौन सी बोन में फ्रैक्चर है, राइट. सो एक्सरे गिव्स द डॉक्टर अ मैप ऑफ फ्रैक्चर सो दैट इट कैन सेट द बोन्स बैक इन देयर नॉर्मल पोजीशन. और डॉक्टर क्या करते हैं, उस बोन को फिक्स कर देते हैं, उसको उसकी जगह पर सेट करके फिर उसके ऊपर बैंडेजेस या प्लास्टर अप्लाई कर दिया जाता है सो दैट आपकी बोन अपने आप हील होगी, लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए कि वो गलत ना जुड़ जाए. बहुत बार क्या होता है अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो बोन में भी हील हो जाए लेकिन वो बेंड हो जाए, कहीं से टेढ़ी जुड़ जाए, कहीं से कहीं गलत जगह जुड़ जाए, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो द डॉक्टर देन पुट्स अ स्प्लिंट or cast around the injured area to keep the pieces in the correct position में लाकर एंड देन डॉक्टर उसको स्प्लिंट और कास्ट करते हैं, यानी प्लास्टर लगाते हैं या स्प्लिंट लगा देते हैं सो दैट उस बोन में मूवमेंट ना हो और वो करेक्टली जो फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाए. सो मूविंग द ब्रोकन एरिया कैन कॉज द पेशेंट पेन एंड कैन ऑल्सो प्रिवेंट द बोन फ्रॉम हीलिंग प्रॉपरली. और अगर ब्रोकन
बोन है उसको डॉक्टर को हमने नहीं कंसल्ट किया तो क्या होगा, जैसे वो हिलेगी तो उसमें पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड द ब्रेक और फ्रैक्चर इज, कास्ट और स्प्लिंट्स हैव टू बी वॉर्न फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स। तो ये कितने मंथ्स के लिए है, कितने वीक के लिए है, ये डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट कितने टाइम के लिए होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है बोन को। नाउ कम टू द मसल्स। चिल्ड्रन, मसल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा सिर्फ फ्रेमवर्क है, जैसे स्केलेटन को आपने देखा होगा, स्केलेटन जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर कोई मसल नहीं है, वो सिर्फ बोन्स का एक फ्रेमवर्क है। सो कैन यू थिंक कि अगर हम एक अलाइव पर्सन है, अगर हमारी बॉडी पर मसल्स नहीं है तो हम बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह लगेंगे, राइट। और हम जो एक्टिविटीज़ अब कर पा रहे हैं, चीज़ें लिफ्ट कर पा रहे हैं, हैंड मूव कर पा रहे हैं, लेग मूव कर पा रहे हैं, वो शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मसल्स ही हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बोन्स अपने आप मूव नहीं करती हैं। सो यू नो दैट बोन्स मूव एट देयर जॉइंट टू प्रोड्यूस मूवमेंट, बट व्हाट मेक्स द बोन्स मूव? Movement is produced by the contraction of muscles which are attached to the bones. तो हमारी बोन्स को जो अटैच करती हैं वो होती हैं मसल्स, राइट। सो अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। बोन्स तो हमारी बॉडी का 1/5 पोर्शन ऑफ टोटल वेट हमारा बोन्स का होता है, बट 50% हमारा जो वेट होता है वो मसल्स की वजह से होता है। और मसल्स हमेशा बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और इसके लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन डाइट को ही हम मसल बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। सो दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये मसल्स में होता है। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, जितना हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम अपनी बॉडी को कैसे भी मोड़ सकते हैं, इधर से उधर मोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जो रेगुलर योगा करता है उसकी बॉडी में कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है? ये एक्चुअली में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये हमारे मसल्स में होती है। हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। सो मसल्स वर्क इन पेयर्स। जो हमारे मसल्स हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करेंगे। एक पेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा पेयर एक्सटेंशन होगा। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल्स एंड रिलैक्सेशन of the other muscles attached to the bone make the bones move. तो हमारी bones में जो movement होता है वो contraction and expansion of muscles की वजह से होता है. So when a muscle contracts, it pulls the bone away from the joint. So contract हुई तो वो joint से दूर कर देगी, और जब relax होगी तो वो पास लेके आएगी. So it allows the bones to move away from itself and towards the joint. Thus two muscles work in pair to move a bone. So दो हमेशा एक पेयर ऑफ मसल एक जॉइंट पे होता है, बोन पर होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है. सो अगर मसल्स नहीं होंगी तो मूवमेंट नहीं होगा. वी हैव अ एक्टिविटी, प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. आस्क योर फ्रेंड टू टाई अ स्केल. जैसे ऐसे करना है, अपने हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है लेंथ वाइज, और अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो यहाँ पर आपका एक लॉन्ग स्केल होता है, उसको आर्म के साथ ऐसे बांध देना. और ट्राई टू बेंड योर एल्बो. अब अपनी आप एल्बो को अगर बेंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो बेंड होगी? नहीं होगी चिल्ड्रन, वो बेंट नहीं होगी. नो, वी कैन नॉट डू इट. बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर. बहुत हार्ड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एंड कैन नॉट बी बेंडिंग, और बेंड नहीं हो सकता है. देन हाउ आर वी एबल टू बेंड आर एल्बोज एंड नीज? थिंक अबाउट चिल्ड्रन. हमने अपने आर्म को बिल्कुल सीधा किया, हमारे फ्रेंड ने हमारे आर्म के साथ एक स्केल को बांध दिया. अब हम चाह कर भी अपना हैंड, अपना आर्म को बेंड नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि बोन्स बेंड नहीं होती हैं. ये मसल्स हैं जिनकी वजह से मूवमेंट होता है बोन्स में, राइट? नाउ कम टू द जॉइंट्स. जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा बोन्स मर्ज होते हैं
वो होता है joint. So the place where two bones meet, this is called joint. The bones of a joint are connected to strong fibrous tissues called ligaments. अब joints कैसे जुड़े होते हैं, ये तो bones पर muscles आ गए हैं, अब joints में ligaments होते हैं. So whereas the fibrous tissues by which the muscles are attached to the bones, so this is called tendons. There are two different types of joints. So एक होते हैं moving joint, एक होते हैं fixed joints. So कुछ joint हमारी body में move करते हैं, कुछ हमारी बॉडी में फिक्स जॉइंट्स होते हैं. जैसे स्कल में हमारे स्कल में ऊपर जो हमने 8 बोन्स पढ़े थे वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. हमारे अपर जॉ में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारे एल्बो में मूवमेंट है. तो ये मूवेबल जॉइंट है. और ये स्कल में जो है वो कौन सा जॉइंट है, वो हमारा इमूवेबल और फिक्स जॉइंट है. सो इमूवेबल और फिक्स जॉइंट और मूवेबल जॉइंट. तो मूवेबल जॉइंट में फिक्स्ड जॉइंट में तो कोई मूवमेंट होता नहीं है, इसलिए वो सिंपल फिक्स्ड है. लेकिन मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं. पिवट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स. तो ये 4 तरीके के जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज जॉइंट्स. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट्स. सो इमूवेबल जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स, राइट? They do not allow any movement of bones and are also called fixed joints. In these joints, the bones are interlocked with one another. एक दूसरे से interlock है, एक दूसरे के अंदर फंसी हुई हैं. जैसे ये हम करते हैं, अपनी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, तो एक दूसरे के अंदर सिमिलरली बोन्स एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड होती है. यानी इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता इन जॉइंट्स में. ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं और फाइब्रस जॉइंट्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स ऑफ स्कल, जॉइंट्स ऑफ टूथ सॉकेट. सो हमारे टूथ में जो नीचे सॉकेट है, यानी कि जो ये भी मूव नहीं करते हैं, राइट? सो नाउ मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स हमने कितनी तरीके के पढ़े थे? 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स: पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स. अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. सो पिवट जॉइंट हमारी बैकबोन में होता है, नेक के पास नीचे, बैक साइड में, इस साइड में. सो पिवट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे. ऊपर के जो 2 वर्टिब्रास हैं उसमें वर्टिब्रे में पिवट जॉइंट आपको मिलेगा. सो द पिवट जॉइंट अलाउज यू टू मूव योर हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड. हम आगे पीछे किसकी वजह से करते हैं? बिकॉज ऑफ दी पिवट जॉइंट. जो डांस करते हैं, जो बच्चे डांस करते हैं, उनमें आगे अपनी नेक को लेके आना, पीछे लेके जाना, आगे पीछे, ये मूवमेंट जो होता है ये बिकॉज ऑफ द पिवट मूवमेंट, पिवट जॉइंट होता है. रोटेट और टर्न इट साइडवेज ऑन टू द लेफ्ट एंड राइट साइड. हमने जब फर्स्ट टेबल किया था स्टार्टिंग में चैप्टर में, उसमें हम देखा था पार्शियली मूवमेंट होता है नेक में. हमारे नेक कंप्लीटली रोटेट नहीं होता है, तो हम साइडवेज इसको मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं नेक को, आगे पीछे. ये मूवमेंट पिवट जॉइंट की वजह से होता है. नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो चिल्ड्रन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में 2 बोन्स जॉइंट होती है. एक बॉल की फॉर्म में होती है, एक बोन जिसका ऊपर का पार्ट बोन की तरह होता है, और वही दूसरा पार्ट एक सॉकेट की तरह. जैसे आप यू कैन अंडरस्टैंड अ बॉल. तो इस तरीके से ये एक बॉल है जो एक बोन है, इसके आगे का पार्ट बॉल की तरह है, सर्कल में है, और ये सॉकेट है, दूसरी बोन है. तो ये क्या होगा, इसमें जाकर फंस जाएगा, राइट? अब ये यहाँ मूव करता रहेगा. सो कैन यू इमेजिन इस तरीके का जॉइंट हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारे शोल्डर में. शोल्डर में हमारा जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. हमारी जो आर्म अटैच होती है वो इसी तरीके से इसमें होती है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कंप्लीट मूवमेंट, कंप्लीट रोटेशन आप कर सकते हो. आप पूरे अपने हैंड्स को रोटेट, अपने आर्म्स को फुल कंप्लीटली रोटेट कर सकते हो. और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप जॉइंट में भी होता है, क्योंकि हम अपनी लेग्स को भी कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं. सो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द एंड ऑफ वन बोन इज शेप्ड लाइक राउंड बॉल एंड द अदर बोन हैज सॉकेट. अब आपने देखा होगा जैसे ये बोन है, ये
इसका ये एंड बॉल की तरह है, इस वाली बोन का जो है ये सॉकेट है, तो ये बॉल इस सॉकेट में फिट हो जाएगी और वहीं पर ऐसे 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 मूव करती रहेगी, राइट। सो द राउंड बॉल लाइक एंड ऑफ वन बॉल फिट्स इनटू द सेम साइज ऑफ नॉच। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपस में कंप्लीट मूवमेंट देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट। हिंज होता है जैसे हम डोर ओपन करते हैं उसमें हिंज होते हैं, तो वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है। डोर जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिमिलरली हमारे हिंज जॉइंट्स होते हैं। द डोर विद हिंजेस कैन बी ओपन ओनली इन वन डायरेक्शन। सिमिलरली द बोन्स एट हिप जॉइंट कैन मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। द बोन्स at these joints allow movement only in one direction, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। जैसे कि एल्बो, एल्बो में एल्बो जब हम मूव करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, ये जो एल्बो में हमारा हिंज जॉइंट होता है। सिमिलरली हमारे नी में भी हिंज जॉइंट होता है और हमारी फिंगर्स में भी हिंज जॉइंट होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो हमारे नी में, एल्बो में, हमारे फिंगर्स में हिंज जॉइंट होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे हम डोर में डोर को ओपन एंड क्लोज करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। सो नेक्स्ट टाइप इज ग्लाइडिंग जॉइंट। सो दीज जॉइंट फैसिलिटेट द ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बोन। एक बोन को मूव कराते हैं दूसरी बोन की सरफेस के ऊपर, राइट। सो द मूवमेंट इन द vertebrae of the backbone that allow you to bend, हम झुक पाते हैं because of the gliding joints become possible because of the gliding movement. Similarly the bones in the wrist and knee also show gliding movement, तो उसमें भी gliding movement होता है। Now come to the body movements and animals। अभी हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा, अब हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी बॉडी मूवमेंट देखेंगे। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट टुगेदर। तो अर्थवॉर्म की बॉडी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिंग्स होते हैं और ये जो रिंग्स होते हैं ये आपस में जॉइंट होते हैं, इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, राइट। सो अर्थवॉर्म बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट्स से मिलकर बनता है। सो द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स बट इट्स बॉडी सिक्रीट अ स्लाइमी सब्सटेंस विच कीप्स इट्स बॉडी मॉइस्ट। इसके अंदर कोई बोन नहीं होती है, अर्थवॉर्म के अंदर कोई बोन नहीं होती है। इसकी जो बॉडी सरफेस से एक लिक्विड सिक्रीट होता रहता है जिससे बॉडी में मॉइस्चर रहता है, स्लिपरी रहता है और प्रोटेक्ट्स इट, ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट। सो इट्स बॉडी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स लाइक ब्रिसल्स कॉल्ड सीटे अंडर इन विच help in gripping the ground and pushing its body ahead. Setae joins the मसल। सो अर्थवॉर्म में कोई बोन नहीं होती है, इसकी स्किन मॉइस्ट होती है। कैसे मॉइस्ट होती है? क्योंकि एक लिक्विड निकलता रहता है जिसकी वजह से स्किन में मॉइस्चर रहता है और इसकी बॉडी, अर्थवॉर्म की बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स से मिलकर बनती है और ये सेगमेंट्स यानी इसकी बॉडी पर हेयर लाइक या ब्रिसल्स होते हैं जो इसके सेगमेंट्स को जोड़ते हैं और उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिनको हम सीटे बोलते हैं। सो बेसिकली अर्थवॉर्म सीटे की हेल्प से मूव करता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ देखते हैं हम पिक्चर में अर्थवॉर्म लुक्स लाइक दिस। सो अर्थवॉर्म में मूवमेंट कैसे होता है? सो कि ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले वो आधा ऐसा नहीं है वो पूरा मूवमेंट करता है, स्नेक की तरह मूव नहीं करता, राइट। ऑल्दो ये भी ऐसा देखने छोटा होता है, स्नेक से बहुत छोटा होता है, लेकिन ये इसका एनलार्ज व्यू है। जो अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है? अर्थवॉर्म अपने पीछे वाली बॉडी को पहले ग्राउंड को होल्ड करता है, आगे वाली बॉडी को मूव करता है, राइट। सो फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, आगे का हिस्सा जो है उसको एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। और पिछला हिस्सा जो है, जैसे यहाँ पर आगे का हिस्सा मूव कर रहा है, पीछे का हिस्सा ग्राउंड को पकड़े हुए है, फिक्स किए हुए हैं, राइट। एंड देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेस द रेयर एंड।
अब क्या हुआ, जब आगे का हिस्सा मूव कर गया तो अब आगे उसने ग्राउंड को होल्ड कर लिया और पीछे से उसने क्या करा, ग्राउंड को छोड़ दिया। तो क्या होगा, वो फिर पीछे का हिस्सा भी आगे चला जाएगा। सो इस तरीके से मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म में। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। अब उसने उसके जो सीटें हैं, जो उसके ब्रिसल्स हैं, उसने क्या करा, उसने ग्राउंड को छोड़ दिया और वो फिर पीछे का जो एंड है, जो हाफ पोर्शन ऑफ अर्थवॉर्म है, वो भी आगे की तरफ मूव कर गया। सो दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। तो ये क्या हुआ, मसल्स में एक्सपेंशन हुआ, पहले एक्सपैंड हुई और फिर रिलीज हुई, यानी रिलैक्स हुई। तो एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की हेल्प से क्या हुआ, अर्थवॉर्म ने मूव किया। तो ये पूरा एक बार भी मूव नहीं करता है, पहले ये क्या करता है, अपना फ्रंट पार्ट को स्ट्रेच करेगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे वाला जो सेकेंड हाफ है, यानी पीछे वाला जो रियर एंड है, उससे वो ग्राउंड को होल्ड कर लेगा। जब फर्स्ट पार्ट मूव हो जाएगा तो अब क्या करेगा, वो पीछे वाला जो रियर एंड है वो ग्राउंड को छोड़ देगा और क्या होगा, पीछे वाला हिस्सा भी आगे मूव कर जाएगा और ये ही रिपीटिंग मूवमेंट होता रहता है। नाउ वी विल सी द मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल बहुत स्लोली और वेवी मोशन करता है। सो स्नेल हैज सॉफ्ट बॉडी और उसके ऊपर ये एक हार्ड क्या होता है, हार्ड शेल होता है, प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल। इट मूव्स बाय क्रीपिंग विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट अंडरनीथ द बॉडी। इसकी बॉडी, ये स्नेल है, ये जो आप देख रहे हो ये मसल्स का फुट है, इसी की बॉडी की मसल से ये इतना बड़ा फुट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये इसी मस्कुलर फुट की हेल्प से क्रीप करता है। क्रीप करना यानी रेंगना, क्या होता है, ग्राउंड पर रेंगता है। द बैंड्स ऑफ मसल्स इन द फुट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड्स। अब ये जो मस्कुलर फुट है, इसके जो मसल्स हैं इसमें एक्सपेंशन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होता है। सो दिस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ रिपलिंग मूवमेंट विच पुशेस द स्नेल फॉरवर्ड। रिपलिंग मीन्स थोड़ा सा वेवी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होता है इसके अंदर। ये ऊपर से हमें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी स्नेल को एक ग्लास के ऊपर अगर आप उसको रखते हो और आप नीचे से देखोगे उसको, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको थोड़ा सा रिपलिंग मूवमेंट दिखेगा। द फुट हैज स्पेशल ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस स्लाइमी म्यूकस टू मेक अ स्लिपरी ट्रैक। अब जिस पर स्नेल मूव कर रहा है जरूरी नहीं है वो स्लिपरी हो, हमेशा हार्ड भी होता है ना, हार्ड होता है, रफ सरफेस होती है। तो इसके फुट से, जो इसका मस्कुलर फुट है, वो एक स्लिपरी लिक्विड हमेशा म्यूकस सिक्रीट करता रहता है, जिसकी वजह से इसको म्यूकस की वजह से इसके फुट, मस्कुलर फुट को कोई नुकसान नहीं होता, कुछ डैमेज नहीं होता और ये इजीली रिपल कर पाता है। द स्नेल कैन मूव इवन ऑन अ शार्प एज विदाउट इंजरी बिकॉज ऑफ द म्यूकस। शार्प एजेस पे भी ये आराम से, रफ सरफेस पे भी आराम से ये मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मस्कुलर फुट में एक म्यूकस रिलीज होता रहता है ताकि वो नीचे की जो सरफेस है उसको स्लिपरी बनाता रहता है, जिसकी वजह से स्नेल को कोई हार्म नहीं होता है। सो विजिट अ पॉन्ड और लेक इन द इवनिंग एंड कैप्चर अ स्नेल. Place the snail on the top of a transparent glass sheet. Observe its motion from the glass sheet by holding the glass sheet over your eye level. जो आप पॉन्ड से कहीं से कोई स्नेल पकड़ सकते हैं और उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट के ऊपर रखें ताकि आप नीचे से उसका मूवमेंट देख पाएँ और यू कैन see its movement. Snail बहुत slowly move करता है. Now come to the cockroach. Cockroach insect है. Insects में कैसे movement होता है? Cockroach के पास legs भी होते हैं, वो move भी करते हैं और उसके पास अपने wings भी होते हैं fly करने के लिए. So the cockroach has thick hard outer covering. इसकी ऊपर की जो covering होती है वो thick होती है, hard होती है. This made it of different units joined together and therefore allows fast movement. इसका movement fast होता है. कॉकरोच फटाफट भाग जाता है, राइट? सो द कॉकरोच हैज अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प देम स्मेल
थिंग्स, इसका एंटीना होता है आगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉकरोच स्मेल कर लेता है और अपने आसपास चीज़ों को स्मेल करता है. दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ सर्सी दैट कैन डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट ऑफ द मूवमेंट एंड warn them of any danger फ्रॉम बिहाइंड. तो सोर्सी भी होते हैं इनके पास, जिससे ये अपने डेंजर को, अपने आसपास के खतरे को सेंस कर सकते हैं. सो तो कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स. दे कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, हाउएवर दे कैन रन and climb very fast across a variety of surfaces. They walk in very interesting way, moving 3 legs at a time. Like all insects, they have 3 pair of legs. कितने पेयर होते हैं कॉकरोच में? लेग्स कितने पेयर ऑफ लेग्स होती है? 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं कॉकरोच को, और 3 लेग्स एक बार में मूव करती हैं. तो ये इस तरीके से मूवमेंट करता है कॉकरोच. ये विंग्स होते हैं इसके, लेकिन वो विंग्स से बहुत ऊंचा फ्लाई नहीं कर पाता है, बट येस वो बहुत जल्दी भाग सकता है, रन कर सकता है. नाउ कम टू द फिश. फिश आर वर्टिब्रेट्स, जिनका बैकबोन होता है. सो वर्टिब्रेट्स हैं, दे हैव इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स. फिश लिव इन वाटर. दिस इज बिकॉज देयर बॉडी शेप इज नैरो एट द फ्रंट एंड बैक एंड थिक इन द मिडल, जिसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. ये फिश की बॉडी कैसे होती है? आगे से नैरो होती है, पीछे से नैरो होती है और बीच में से थोड़ा सा वाइडर होती है. दिस काइंड ऑफ अ बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड बॉडी. सो इट अलाउज द वाटर टू फ्लो अराउंड द बॉडी ऑफ फिश इजीली. द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड एज फिन्स. अब फिश में क्या होता है, इसमें हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो इजीली स्विम कर पाए. दीज फिन्स हैव अ फ्लेक्सिबल बैकबोन दैट हेल्प्स देम टू ट्विस्ट देयर बॉडी while swimming. So a fish swims in following manner. कैसे swim करती है fish? Muscles make the front part of the body curve to one side and then tail part swings to the other side. जैसे ये first है, इसमें इसका जो mouth है वो इस side turn है और जो tail है वो इस side turn है, right? जो opposite direction में turn होते हैं. और उसके अलावा ये होता है, ये जैसे फर्स्ट है, देन सेकेंड, अब आपका साइड वेज थ्रस्ट है. इस तरीके से क्या होता है, मूवमेंट होता है और डायरेक्शन चेंज होती है, और लास्ट में जो टेल होती है वो हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, राइट. सो फिश भी स्विम करती है. नाउ नेक्स्ट एनिमल इज स्नेक. स्नेक क्या करता है? स्नेक के मूवमेंट को स्लिथर बोलते हैं. स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन एंड मेनी थिन मसल्स which interconnect the backbone, fin and ribs. A snake slithers because it forms numerous loops with its long body. So slither करता है, snake movement को slither बोलते हैं, और ये भी बहुत सारे loops से मिलकर बनता है जो कि interlinked होते हैं. Each loops gives it a forward push by pressing it against the ground. और इन loops की help से ये क्या करता है, ground को push करता है और आगे move करता है, push करता है आगे move होता है. So this is called slither. Now birds की भी streamline body होती है जैसे fish की होती है, आगे और पीछे से narrow और बीच से wider. Similarly birds की भी ऐसे ही body structure होता है, streamline body इसको बोलते हैं. इसकी bones hollow होती हैं अंदर से, और ये बहुत ही light weight होती हैं. Because of this they are able to fly and they have hind limbs, because हिंड लिम्स की हेल्प से ही दे आर एबल टू वॉक. तो बर्ड्स वॉक भी कर सकती हैं, हॉप कर सकती हैं, वॉक नहीं हॉप करती हैं. सो स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट. हॉलो एंड लाइट बोन्स होती हैं. मॉडिफाइड ब्रेस्ट बोन्स होती है. होल्ड द स्ट्रॉन्ग मसल्स टू फ्लाइट. सो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्रेस्ट बोन होती है जिससे जो फेदर्स होते हैं वो अटैच होते हैं. स्ट्रॉन्ग मसल्स टू फ्लाइट विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन. एंड स्पेशल बोन्स एंड मसल्स ऑफ हिंड लिम्स फॉर हॉपिंग एंड पर्चिंग. तो क्या करती है ये, हॉप करती है बर्ड्स किसकी हेल्प से? हिंड लिम्स की हेल्प से, राइट. नाउ we have new words and summary points. You can go through these points on your own. Come to the exercise part. First is tick the correct option. The total numbers of bones present in human body कितनी है? 206 है. The total number of bones present in human skull कितनी होती हैं? 29 bones होती हैं.
Next is the number of ribs present in the rib cage, 12 pairs. The longest one of the human body, कौन सी है? Femur. The chest cavity protects both lungs and heart. Next is the joint present in facial bone. So this is immovable joints, move नहीं होते. Now come to the next question, which is true and false. Children, first statement is the exoskeleton limits the growth of small animals. So this statement is true. चिल्ड्रन दो तरीके के स्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है. द फेशियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 7 बोन्स. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज कितनी बोन्स होती है फेशियल? 14. नेक्स्ट इज द फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. सो दिस इज फॉल्स. लास्ट जो पेयर होता है वो floating ribs होता है. The red blood cells are produced in the bone marrow. This is true. Birds have hollow bones to make them light. Correct. Cockroaches turn bipedal at high speed. Again true. और उसका मूवमेंट कैसा होता है? बाइपेडल, यानी पहले 3 लेग से मूव करेगा, फिर 3 लेग से मूव करेगा, तो 3 पेयर्स यानी टोटल 6 लेग्स होते हैं उसके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ काइटिन. राइट. नेक्स्ट इज the tail fin in a fish helps it to twist its body while swimming. ट्विस्ट करना किसकी हेल्प से होता है? टेल फिन की हेल्प से. द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर पार्ट्स ऑफ एक्साइल skeleton. Next is there are 12 pairs of ribs present in human body. Fifth one, the number of vertebrae present in human neck, it is 7. Birds have modified chest to help them in flying, right children? So we have reached to the end of this chapter. We'll meet in the next class. Till then, bye and take care.